Good evening, everyone. So my screen is visible to you? Yes, ma'am. All right. Okay, so in the previous class, we started off with pre-formulations. Any doubt in pre-formulation? Okay. No, ma'am. Okay, no problem. Okay, now next thing is we gave you something to read about tablets, right? From the Lachman, 2 to 3 pages were given to you. So how many of you have literally read the 2 to 3 pages that we gave you? A very simple introduction of tablets were given. How many of you? Yes, ma'am. Okay, great. So, okay, now what I want is we'll discuss briefly. Okay, we can share so that if some of them have not read it, so they can get an overview of what was given. Okay, so any one of you or 2 to 3 people can tell us so that we know what exactly was in the 2 to 3 pages of the tablets. So let me start off with myself only. That okay, it was that what is tablets? What are tablets? Okay, so we know there are variety, there are various dosage forms. Okay, now if I have to be clear, the dosage form is anything or any drug or a combination of drug which we give to a patient in order to cure it from any disorder or a disease, right? So that particular form, be it in solid dosage form, be it a liquid dosage form, okay, any dosage form, aerosols, liquid in gas, in any form, you give it to the patient in order to cure a particular disorder or a disease. So that's what we call it as a dosage form, right? So now in solid dosage form, we'll start off with the basic and the most important, that is pharmaceutical tablets. Okay, so the pre-read which was given you was about what are tablets and what are the advantages and disadvantages. Now any one of you can volunteer themselves and tell me briefly what was it about, or what do you get it from that? Yeah, ma'am. So, Along with your ma'am, name. Okay, one thing, from this class onwards, please mention your name and then tell me. Okay. Yeah, ma'am. Ma'am, I am Shivam. Shivam Maurya. So, ma'am, the main part which we read about in the pre-read, it was about tablet as a dosage form. And so basically, what are tablets? Tablets are unidosage forms, unidosage solid dosage forms, which are administered to the patient. And basically, it is a punched powder which is shaped in the form of a cylinder disc, right cylinder disc. It is shaped in that form and given to the patients. And also we read about it is one of the most commonly used dosage form. Coming to the advantages, like if we talk, then it is one of the most used dosage forms among the patients. It has a higher patient compatibility, high palatability, and also it is very convenient to use, so that we do not need anyone to administer that thing. And also the cost is cost effective. It is very cost effective. And All right, Shivam, it's enough. Thanks. Yeah, Okay, absolutely ma'am. right, Shivam. Absolutely right. But yes, there are few points which I'll mention that okay, क्योंकि हम लोग बस बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि टैबलेट्स क्या होती है, इसमें से भी एक बहुत अच्छी चीज शिवम ने बोली, which is कि हर चीजें मेंशन करना जरूरी है कि कौन सी डोजेज फॉर्म है, whether it is solid, liquid. So absolutely right, शिवम, it's a unit dosage form, जो कि हम solid dosage form मेंशन करना बहुत जरूरी है.
ठीक है, उसके बाद शिवम ने बताया कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेज जो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के उसमें। उसके बाद हमने ये भी देखा है इस चीज में दैट फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स जो है सबसे ज्यादा यूज करी जाती हैं, दैट्स व्हाई हम सबसे ज्यादा पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि रेगुलर लाइफ डे टू डे लाइफ में आपने देखा है कि सबसे ज्यादा हम टैबलेट्स यूज करते हैं rather than capsules, right? Okay, anything anyone wants to add on what Shivam just said? Ma'am, myself Vishal Chitta, and like I want to add like the advantages on the of tablets on like capsule what we are using. So the advantages is that the tablets are a tamper proof among the like capsules because they are not adulterated or during manufacturers no adulteration can be done during the tablet manufacturers, as we can like during capsules there can be like adulteration, manufacturing defaults can be done, but here it's not possible. And Okay, the low I cost want to of a pause you tablet. for a second. What's your name? Vaishali ma'am. Sorry, Vaishali Chitta. Vishali, right? Yes ma'am. Okay, Vishali, great content. But let me tell you one thing that you are saying. Does it mean that the capsules have defects, manufacturing defects, whereas tablets do not? No ma'am, not like that, but what I want to say that during manufacturing of tablet and capsule, so I mean I want to say ki like adulterants, or we can say like I can't like express, but it is Or like you mean to? temper. Okay, go on. Tablets are tamper proof among like as compared to capsule. Okay, what do you mean by temper proof? Like it's a new term, right? Yes ma'am. Ma'am, like unusual things cannot be like during manufacturing couldn't be like added in like tablets, like what I mean. Sorry, I didn't get you. Ma'am, I couldn't express the temper proof meaning, means I want to say Okay, leave it. We'll discuss this in packaging. Okay, maybe you are right. Yes, Ma'am, yes. I guess what she is trying to say is that tablets as a dosage form are very much resistant towards the all the types of physical and the stress. Tablets. Yeah, physical stress basically. Okay, Like okay. it won't chip out or it won't fracture easily. Yeah, that's what I'm saying, that when later in this tablets we will discuss about the defects, so there will be a chance of chipping in tablets as well. For example, now this completely depends upon your packaging, right? For example, if you are having a very thin layer of films as a package material for your tablets, then, and if you are keeping it in your bag, okay, and for example, if you're keeping your hand over your bag or something like that, so it will get chipped if there's a very thin film. You might have seen that there's very sometimes the tablets get covered in a very thin film of plastics, right? So there are a lot of chances of tablets also getting chipped. Okay, we'll discuss that in packaging. But anyhow, it was a good try. Okay, at least you read it, and that's what you understood. That's great. So now we'll discuss and move forward. Okay, so what do we understand by tablets? Now, pre-read इसलिए दिया जाता है कि कितना आप समझे हो और कितना मैं आपको कम्युनिकेट, जितना मेरे अंदर नॉलेज है उस चीज का मैं आपको कितना बता सकती हूँ, ठीक है? तो दैट्स व्हाई प्लीज आप जो भी रीड करने के लिए बोलते हैं उसे रीड करिए, उससे ये पता चलता है कि आपने कितना समझा एंड कितना आप जहाँ पे गलत हैं वहां पे हम आपको करेक्ट करेंगे. Okay, now let's start with pharmaceutical tablets. Now, absolutely said by Shivam and Vishali that it's a solid dosage form containing medicaments with or without excipients. That is, the medicament that excipients may or may not be present. Okay. Okay. Now, how many of you? I think you all are from third year. Yes, ma'am. Yeah, yes ma'am. ma'am. Third year. Okay. Okay. Perfect. Okay. Now, how many of you are aware of the word excipients? राइट बहुत लाइटली यूज करा जाता है हमारे फार्मेसी में एक्सिपिएंट्स. एक होता है एपीआई. नाउ वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट अगर हमारा ड्रग है तो वो दो चीजों से बना है. एक बना है एपीआई से और उसमें एक्सिपिएंट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. माइनस प्लस माइनस मींस एक्सिपिएंट्स डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई? एनीवन?
मैम जिज्ञासा जी Pharmaceutical ingredient. Absolutely right. Pharmaceutical Active pharmaceutical ingredient, which is the main ingredient in your drug. Okay. For example, if I tell you about aspirin, सबको पता है aspirin? ठीक है, जब भी किसी का NSAID है वो, जब भी किसी को सर दर्द होता है ऐसा होता है तो हम बोलते हैं एस्पिरिन ले लो, ठीक है। डिस्प्रिन की उसमें आता है इसका जेनरिक नेम भी। तो अब मुझे ब्रांड नेम, सॉरी। तो अब मुझे एक बात बताइए कि एस्पिरिन फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो उसमें एपीआई क्या है? acetic salicylic acid. Absolutely right. Absolutely right. So it is acetyl salicylic acid. Now, मेन इंग्रेडिएंट्स अब क्या होता है जब आप फार्मासिस्ट बनो, धीरे धीरे जाकर फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ ईयर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप देखोगे कि हमें मेन इंग्रेडिएंट पता होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जो चीज हमें ट्रीट कर रही है तो वो एपीआई ही कर रही है। एक्सिपिएंट्स क्यों डाले जाते हैं? व्हाट आर एक्सिपिएंट्स? materials added to binding or giving a flavor or something. ओके, स्टेबलाइजर्स हो सकते हैं, जहां तक मुझे प्रिजर्वेटिव। एब्सोल्युटली राइट। तो इससे क्या मत पता चल रहा है? एक्सिपिएंट्स क्या हैं कि जो बेसिकली एपीआई तो है जो हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो डिसऑर्डर है चाहे डिजीज है, उसको ट्रीट करने के लिए। एक्सिपिएंट्स क्या करते हैं? इसको स्टेबलाइज या फिर इसको, इसकी लॉन्गेविटी को, या फिर कई बार इसकी हाफ लाइफ को, या फिर कई बार इसकी, इन शॉर्ट इसकी स्टेबिलिटी को, इस पूरे ड्रग की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रहे, मेरे एपीआई की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और जैसा मुझे चाहिए वैसा ये रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 एपीआई यूज कर रही हूँ एक ड्रग को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल 2 और मोर पाउडर फॉर्म में डाल सकती हूँ, तो कई बार जो मेरा ड्रग ए है और ड्रग बी है, क्या पता वो इनकम्पैटिबल हो। बहुत सारे चांसेस होते हैं ऐसे, ठीक है, कि कोई भी 2 ड्रग है, एपीआई है, वो इनकम्पैटिबल है। तो एक्सिपिएंट्स ऐसे करेंगे कि उन दोनों की, या तो हम प्रिजर्वेटिव तो होगा जब आपको उसको बहुत टाइम तक चलाना है, ठीक है, फिर हम डालेंगे कुछ स्टेबलाइजर्स डाल देंगे। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे एक्सिपिएंट्स के अंदर, जो कि इस पूरे ड्रग को, जो मेरे पूरा ड्रग बनता है उसको स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बात बताओ, पीसीएम जो हर कोई यूज करता है, और अब डोलो 650 उसका एक और ब्रांड नेम है, जो इसमें कोविड में जो सबको बोला गया है। तो डोलो 650 में एट द एंड ऑफ द डे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पैरासिटामोल, ठीक है। अब पैरासिटामोल में सेकंड थिंग इज उसके एक्सिपिएंट्स आप लोगों को पता है? नहीं, क्योंकि वो चीजें बैक में है, मतलब बहुत सारी चीजें डलती हैं उसमें एक्सिपिएंट्स में भी, ताकि वो स्टेबल रहे, पूरी फॉर्मुलेशन जो है आपकी स्टेबल रहे। पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है एपीआई पता होना चाहिए उसका, ठीक है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुझे उसी से पता चलेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई पूरा एक ड्रग है वो 2 कंपोनेंट से बनता है, एक है एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स डिपेंडिंग ऑन कि आपके एपीआई स्टेबल, वैसे ही खुद में स्टेबल है सारी चीजें, तो एक्सिपिएंट्स डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ एक्सिपिएंट्स की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, क्या क्या एक आइडियल एक्सिपिएंट कर सकता है? एक है केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकली इनर्ट? Should not react with does not react with the API. Absolutely right, does not react with the API। इसको ऐसे मत लेना कि केमिकली इनर्ट मतलब कि खुद में ही उसका कुछ फंक्शन ना हो। इसका फंक्शन होता है, बट इट हैज टू बी समथिंग लाइक इट शुड ऐड, और इट शुड बी मतलब उसके लिए बून हो एपीआई के लिए, rather than कि उसमें कोई जाके रिएक्शन करके कुछ अलग ही बनाते, ठीक है। उसका एपीआई का एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। Then free from bacteria contamination, which is obvious. Then it should be cost effective, right? क्योंकि एक्सिपिएंट्स के अंदर स्टेबलाइजर्स, बफर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कि मेरी कॉस्ट, पूरे ड्रग की कॉस्ट को बढ़ाना दे ज्यादा, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। कोई भी उसका जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जाके एपीआई जैसे भी एक्ट कर रहा है, जो भी मेरा ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं, इंटरफेरेंस कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, देन अगेन कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, एंड शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी चीजें हैं जो हम एक्सिपिएंट्स के लिए, एक आइडियल एक्सिपिएंट्स को देखते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू टैबलेट्स। नाउ अब टैबलेट्स हमने बोला कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, और विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स यूज होती है। अब अगर मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊं कि टैबलेट्स बनती कैसे, जैसे शिवम ने एक चीज बोली थी कि हम पाउडर को, शिवम आपने क्या बोला था एक वर्ड, कि पाउडर को हम It's punched, powder is punched into diacavity. राइट,
So the powder is punched or you can say compressed. ठीक है, it is compressed in a dye cavity which we will discuss कि, और depending on, जरूरी नहीं है, ये सबको पता है ये चीज कि जरूरी नहीं है कि वो डाई कैविटीज को आप अकॉर्डिंगली, हर कोई प्रेफर करता है कि ओवल शेप का हो, एज इन मैक्सिमम टैबलेट्स आपने ऐसी देखी होंगी, कोई भी आपने ऐसे या ऐसे नहीं देखी होगी. व्हाई? एनी रीजन? क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी, तो पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ सकता है. तो हमेशा ओवल ही क्यों होती है, सर्कुलर ओवल ऐसे शेप की क्यों होती है? व्हाई डज इट नॉट हैव रफ एजेस, शार्प एजेस? Ma'am, because sharp edges can lead they can leak the API. Sorry, breaking of tablets at the edges. breaking of chipping of tablets or breaking cracks, right? Okay, anyone else or And something? ma'am, it can also harm while swallowing. Harm a swallow. Okay, yeah. Anyone else? So, ma'am, Yes, say. ma'am, the oval shape provides the smooth surface. Right. So yeah, so collectively what is mean is that अगर मेरे पास ओवल शेप का, सर्कुलर शेप का होगा तो ए ऑब्वियसली पेशेंट कंप्लाइंस इसमें ज्यादा है, इसलिए पहली बात होगा कि ऑब्वियसली मुझे गल्प करने में आसानी होगी. ये चीज हो गई पेशेंट के लिए, ठीक है, पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ाने के लिए. सेकेंडली स्मूथ सरफेस ज्यादा है इसका एज कंपैरेटिवली दिस. अगर मेरी ये रफ या शार्प एजेस है मेरी ये, तो क्या होगा, जैसे पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, दिस इज योर पाउडर फॉर्म. तो यहाँ पे डाई कैविटी में डाला जाता है, यहाँ पे पंच होता है, एक और ऊपर से आता है डाई, ये कैविटी है, यहाँ पे पंच होती है आपकी पूरी. तो वो उस डाई का जो होता है ना, वो सर्कुलर ऐसे ओवल शेप में रखा जाता है. तो जैसे ही पंच होगा वैसे ही आपकी इजेक्ट हो जाएगी ओवल शेप की टैबलेट्स. नाउ अगर मेरे पास ऐसा वाला डाई हुआ, ठीक है, तो क्या होगा जब मैं इसे इजेक्ट करूंगी, क्या पता जब मैं और पैकिंग भी करूंगी तो इसकी जो ये साइड्स है ना, कि चिप ऑफ हो जाए, टूट जाए, ठीक है. सो इट इज कन्वीनियंट टू हैव अ सर्कुलर, क्योंकि इसमें कोई रफ या शार्प एजेस नहीं है, यू नो, कि अगर मेरे पास ट्राइंगल या कोई और शेप की होंगी तो वो एजेस से चिप ऑफ हो जाएगा बहुत इजीली. बल्कि सर्कुलर में भी कुछ चिप ऑफ, कुछ स्टिकीनेस होती है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर मेरी शेप सर्कुलर, ट्राइंगल इन सब में होगी. डू यू एग्री विद दिस? Yes. ओके. सो ये चीज जो एक कॉन्सेप्ट था कि सर्कुलर वाली चीज पंच करके फिर हम आगे पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. बट यस, दिस इज द टैबलेट की वो पाउडर जैसे हमने सारे पढ़े थे कि हमें पाउडर की प्रॉपर्टी कैसे रेगुलेट करनी है, वो हमने प्री फॉर्मुलेशंस में पढ़ लिया था, ठीक है. अब पाउडर से हमारा नेक्स्ट स्टेप आया जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो है टैबलेट्स के बारे में. अब एक्चुअली में टैबलेट्स हमें क्या, ड्रग है पूरा किस चीज से बने, एक टैबलेट पूरी किस चीज से बनी है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, और कितने टाइप्स की टैबलेट्स होती हैं, या फिर हम कैसे दे सकते हैं उन टैबलेट्स को, ठीक है. सो विल लुक इनटू दैट. आल्सो एक केमिकली इनर्ट का एक एग्जांपल, वन सेकंड. नाउ इफ आई हैव टू मेंशन दिस, यू कैन टेक एन एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन. हम आप टेट्रासाइक्लिन एवरीवन नोज, पढ़े फार्माकोलॉजी में. तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है. तो जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली लिखा जाता है कि कोई भी डाइवेलेंट सॉल्ट्स इसके साथ नहीं देने. डाइवेलेंट सॉल्ट्स एज इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट. तो डाइवेलेंट्स इसलिए नहीं देने क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, ये इंटरफेयर करते हैं टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन से फ्रॉम द जीआईटी. दैट इज जो उसका एक्शन होगा ना टेट्रासाइक्लिन का, वो इन डाइवेलेंट जो भी आयंस है इनके साथ नहीं हो पाएगा, यू नो. हम बोलते हैं ना कई बार ड्रग इंटरैक्शन हो जाती है, तो ये ड्रग इंटरैक्शन जो है इट्स वेरी हार्मफुल, ठीक है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Anyone wants me to Yeah, repeat? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Repeat, ma'am. Can any repeat? Okay. Who is this? Tell me your name and then I'm Pranav. Pranav. Okay, Pranav. Okay. So what I was saying is कि जब मैंने बोला एक्सिपिएंट्स केमिकली इनर्ट होते हैं, तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रही थी कि मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरे एक्सिपिएंट, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा एक्सिपिएंट यूज करती हूँ जिसमें कैल्शियम आयंस हैं, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स हैं. तो बेसिकली अब आप बोलोगे कैल्शियम सॉल्ट्स कहाँ यूज होते हैं, तो फिलर्स या डाइल्यूएंट्स जिसे कहते हैं. कई बार क्या होता है, सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 mg पीसीएम ले लेते हैं, ठीक है.
उसके बाद 500 mg PCM बनानी है आपको, या फिर चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और ड्रग है मेरे पास से, ठीक है, मेरे पास से 500 mg मुझे कोई ड्रग ए बनाना है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ड्रग पूरा बनाना है, मतलब उसके अंदर आप 250 mg आपका वो होना चाहिए मेन API, ठीक है। रेस्ट आप कुछ भी अपने एक्सिपिएंट्स डाल सकते हो। तो डाइल्यूएंट्स या फिलर्स जिसे कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक्सिपिएंट्स का पार्ट ही होते हैं। तो डाइल्यूएंट्स या फिलर्स क्या करते हैं कि जो रेस्ट है, जो टोटल 500 mg बनाना है, तो क्या होता है ना, एक ना क्राइटेरिया होता है हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी बताया था शिवम को कि पंचिंग करनी होती है, जब हम पंच करते हैं अपनी टैबलेट को, तो ये नहीं कि 500 mg की कोई भी पाउडर ले आया पंच कर दिया, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपको एक क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको एक ड्रग की क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिलर्स या डाइल्यूएंट्स यूज होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम इस पे देखते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट्स अगर मेरे पास हैं और मुझे मिक्स करने हैं अपने ड्रग के साथ, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल कि टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, तो उसके साथ ये एक्सिपिएंट कभी भी नहीं डालते हैं। कौन सा एक्सिपिएंट्स? कैल्शियम सॉल्ट्स या फिर कोई भी डाइवेलेंट आयंस जैसे मैग्नीशियम हो गया। ये क्यों नहीं डालते? क्योंकि इन दोनों की आपस में इंटरैक्शन हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज ड्रग एक्सिपिएंट इंटरैक्शन। मतलब कि अगर आपने कोई भी डाइवेलेंट टेट्रासाइक्लिन के साथ डाला, तो टेट्रासाइक्लिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, जो उसकी एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में, वो कम हो जाती है। तो जो उसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है बॉडी में, वो नहीं करेगा, कम करेगा। Did you get this, Pranav? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मैं एक एग्जांपल दे रही थी, केमिकली इनर्ट हमें क्यों चाहिए, इसको कहते हैं ड्रग एक्सिपिएंट इंटरैक्शन। ओके, नाउ अब हमें यही चीज है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमें एक्सिपिएंट्स क्यों चाहिए। तो हमें, जैसे बहुत लोगों ने बोला, स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव, बफर्स, एब्सोल्युटली राइट, कि एट द एंड हमें पूरा स्टेबल कंपाउंड बनाना है, स्टेबल ड्रग बनाना है, ठीक है। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसके, जैसे कि इट विल एड इन प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी जब मैं उसे पंच कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पाउडर फॉर्म में है एक ड्रग, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो पाउडर्स होते हैं ना, जैसे मैंने पंच करा, बहुत टाइटली पंच करा, मैंने प्रेस करा, लेकिन क्या होता है कई बार जो पाउडर जो होते हैं ना, उनके अंदर इतनी ड्राइनेस होती है, फिर उनके अंदर बाइंडिंग जो फोर्स होती है ना सारे पार्टिकल्स को एक रखने की, वो कई बार नहीं होती, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं वो पाउडर्स, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम बाइंडर्स डालते हैं, ठीक है। तो बाइंडर्स डालेंगे हम उस पाउडर फॉर्म में, तो क्या करेगा, वो जो सारे पार्टिकल्स है ना पाउडर के, वो सारे इंटैक्ट रहेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्पैक्ट टैबलेट बनेगी, ठीक है। तो कौन से वेरियस बाइंडर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो वो एक एग्जांपल है कि हाउ डज इट एड इन प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। देन सेकंड इज टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट एंड एनहांस द स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी, टू इंक्रीज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। ऑब्वियसली एक्सिपिएंट्स, अब इसमें ये कोई एग्जांपल बता सकते हैं, दिस इज वेरी कॉमन, कि हम एक्सिपिएंट डाल के पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी या पेशेंट कंप्लायंस कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन से एक्सिपिएंट्स होंगे वो? Flavors. Sweetening agent. सॉरी, Flavoring agent or sweeteners. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, फ्लेवरिंग एजेंट्स, या फिर जैसे सुक्रोज वगैरह ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे टैबलेट्स, ऑलमोस्ट बहुत सारी टैबलेट्स जो होती हैं वो बिटर होती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐसे डाले जाते हैं कि जो कि स्टेबल भी हों उस एपीआई के साथ और पेशेंट कंप्लायंस को भी बढ़ाते हैं। ऑल्सो कलरिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं, ठीक है, जो एफडीए अप्रूव्ड होते हैं, कलरिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबलाइजर्स डाले जाते हैं। टू इम्पैक्ट वेट, एक्यूरेसी एंड वॉल्यूम, जो मैंने अभी बताया कि मुझे अगर वेट को बढ़ाना है तो मैं डाइल्यूएंट से फिलर्स डालती हूँ, उसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे। Then to assist in product identification. Now this is also very important कि हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे एक्सिपिएंट्स के बारे में, तो हम देखेंगे, जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा, फॉर एग्जांपल डाइजीन की टैबलेट्स देखी है, सबके घर में होगी डाइजीन की टैबलेट। Yes, ma'am. Now it's quite attractive क्योंकि ए पिंक कलर की होती है, ठीक है। सेकेंड, फ्लेवर उसका अच्छा होता है, मीठा सा होता है, ठीक है। एंड अब उसमें बात करूं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन की, तो आपने देखा होगा उसमें से डी बना हुआ होता है, या फिर कई बार उसमें पूरा डाइजीन लिखा हुआ होता है साइड में, राइट? Yes, ma'am. तो क्या होता है इस चीज से
कि फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को अगर देखना चाहिए डायरेक्ट देख लेगा, अगर उसको नहीं पता कि पीछे क्या लिखा है, कुछ नहीं पता, तो फिर वो पिंक टैबलेट देखेगा, एक तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि डाइजीन होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो देखेगा डाइजीन लिखा हुआ है ऐसे साइड में या डी बना हुआ है, अच्छा फिर वो बोलेगा चाहिए डाइजीन है, तो दैट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो एक्सिपियंस होते हैं ये प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि नाउ यू विल बी सरप्राइज, जब हम एक हॉस्पिटल की फार्मेसी में बैठते हैं तो क्या होता है कि जो कुछ ओल्ड पीपल होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आके बोलते हैं अच्छा हमें ये दवाई दो। फॉर एग्जांपल बीपी कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही है, अगर आपने इन केस उसकी बाहर की कवरिंग पैकेजिंग चेंज हो रखी है कुछ है, तो वो बोलेंगे नहीं हमें वही वाली दो, पुरानी वाली जो आपने पैकेज के साथ दी थी। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक कंपनी की दिए जा रहे हैं ना, उस कंपनी की खत्म हो गई वो दवाई, आप दूसरी कंपनी की मैन्युफैक्चरर की दोगे आप, तो वो बोलेंगे नहीं हमें तो वही उस कलर की, या फिर जो उसमें सिल्वर फॉइलिंग थी, प्लास्टिक की फॉइलिंग थी, जैसे भी थी, तो उनको वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, तो वो उसी में टक जाते हैं कि नहीं हमें ये नहीं पता कौन सा ड्रग क्या है, हमें तो वही दो जैसे वो दिखती थी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे डाइजीन की टैब्लेट आप इमीडिएटली एक चीज तो देख ही लोगे कि पिंक कलर की होती है, उसके बाद आप पढ़ोगे अच्छा डाइजीन है या नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई एक्सिपिएंट्स, कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अंडरस्टूड व्हाई डू वी नीड एक्सिपिएंट्स? Yes, ma'am. मैम, हाँ जी, हाँ जी। आपने जिस बाइंडर के बारे में बताया था जो कंप्रेस करने के वक्त यूज होता है, वही बाइंडर्स एरोसोल्स और ग्रेन्यूल्स वगैरह बनाने भी यूज होता है क्या? नो नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। हमेशा याद रखना सारे एक्सिपिएंट्स सारी चीजों के लिए यूज नहीं होते हैं। नहीं मैम, एक्सिपिएंट सबके लिए अलग रहते हैं, लेकिन मतलब वही टाइप का होता है क्या, मतलब जो बाइंड करने के लिए यूज होता है हर चीज में? नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जांपल टैबलेट्स में आपको पता है आपको सॉलिड डोजेज फॉर्म चाहिए, व्हाट इज एरोसोल? लिक्विड या गैस रहता है। लिक्विड इन गैस, राइट, लिक्विड इन गैस। तो वहां पे आपको नहीं, वहां पे एक इमल्शन सस्पेंशन सी बनती है, ठीक है, वहां पे आपको किसी चीज को बाइंडिंग पार्टिकल्स अगर फ्री फ्लोइंग भी रहेंगे लिक्विड में, फिर गैस से प्रेशर लग के फिर वो आप उसको, फॉर एग्जांपल योर अस्थमा पंप जो होता है, ठीक है, तो उसमें वो इमिडिएटली जाके हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्यों चाहिए? क्योंकि पाउडर्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए मुझे, पाउडर सारे एक साथ होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मेरे पास सारे पाउडर फॉर्म में है पाउडर, अगर जब मैं इसे कॉम्पैक्ट करूंगी एक चीज में तो मैं चाहती हूँ एक सॉलिड रिजिड सा बना रहे, वेयर एज एरोसोल के पंप आपने देखे होंगे ऐसे कुछ होते हैं। यस मैम। ठीक है, कंटेनर टाइप के होते हैं ना, तो वहां पे वो पूरा पूरा इसमें फिल्ड होता है। यहाँ पे पंप होगा आपका स्प्रे करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर से होता है, पाइप ट्यूब होती है, वॉल्व भी होती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरा डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है। नो नीड टू, इसमें कोई बाइंडर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। बाइंडर्स उसी, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि सारे टैबलेट्स के बाइंडर जरूरी है, वहां जरूरी है बाइंडर्स जहाँ पे लगता है कि कुछ पाउडर्स हैं जो जिनके पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, या कहते नहीं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन नहीं है ज्यादा उस चीज। ओके मैम, लाइक पैलेट्स वगैरह में अलग अलग हर जगह पे यूज होता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ये बहुत ही बेसिक वाले हैं, इससे अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस लेट्स क्विकली गो थ्रू। लाइटर एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, हम सबको पता है। और जब भी मैं टैबलेट या कैप्सूल्स पढ़ाऊं, हमेशा ना जब भी कोई चीज पढ़ो उसको इमेजिन करा करो। सबसे बेसिक जैसे मैं इमेजिन करती हूँ पीसीएम को करती हूँ, पैरासिटामोल सबके घर में होती है, तो हमेशा इमेजिन करो अच्छा टैबलेट्स है, अच्छा हाँ लाइट एंड कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इट इज इजीएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्राइक ऑल्सो, ठीक है। चीप तो है ही, क्योंकि इतनी चीप एज इन कि इतनी कॉस्टली नहीं है। कुछ टैबलेट्स होती है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं ऑल्सो, जो उनका डिजीज डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा सिवियर वाले, जैसे फॉर एग्जांपल एल्जाइमर्स की या बहुत सारी एपिलेप्सी की दवाइयां भी बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, ठीक है, लाइक 8 कैप्सूल्स फॉर 8,000 और 8 टैबलेट्स फॉर 8,000। तो बट अगर आप बेसिक उसमें जाओ तो फिर वो चीप भी होती हैं, ईजी होती हैं। Then objectable odor and taste can be masked by coating techniques, जो हम पढ़ेंगे, tablet coatings is very easy. Then greater chemical and microbial stability over other oral formulations. Now, what are other oral formulations? Capsule. Capsule, liquid dosage form. Liquid dosage form, absolutely right. तो अभी अब आप बात बताओ एक चीज कि सॉलिड, लाइक थिंक ओवर इट,
कि सॉलिड और लिक्विड की बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिरप है, मेरे पास एक टैबलेट है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन, स्टेबिलिटी, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कौन सी ज्यादा स्टेबल है फॉर्मुलेशन, सॉलिड और लिक्विड? Solid. Okay, solid is more stable, right? Yes. Right. Yes. Why do you think so? Just because I have written? Moisture content is low. लिक्विड इजीली स्पिल हो जाता है एंड इवन इफ इट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो जाए तो हम देखते हैं लिक्विड के बॉटल के बाजू में वो कैसे लिक्विड सूख जाती है. Right. तो So contamination का yes, chance absolutely right. So I can conclude this कि भाई मॉइस्चर वाली चीज है, क्योंकि जहां मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना ज्यादा, तो वहां पे माइक्रोबियल स्टेबिलिटी कम रहेगी. ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली राइट कि लिक्विड डोसेज में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा. ऑल्सो वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर विद द ओरल फॉर्मूला, लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशंस, राइट. जैसे ही बोला कि स्पिल ऑफ हो सकती है, फिर प्रॉपर्ली देखना. वेयर अगर मैं टैबलेट की बात करूं, मैंने एक उससे पैकेट से निकाली एंड मैंने ले ली बस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ज्यादा है. Then obviously it is easy to administer, apart from the fact that कुछ लोग अनकॉन्शियस होते तो आप उनको नहीं दे सकते, उनके लिए भी अलग टाइप की टैबलेट्स होती हैं. ठीक है, देन देयर इज नो रिस्क इन चोकिंग. अभी अगर हम उस चीज को हटा दें कि अनकॉन्शियस पर्सन है, वैसे कोई रिस्क नहीं होता, इजी टू एडमिनिस्टर है. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी एंड नो एक्स्ट्रा स्टेप्स इज रिक्वायर्ड. Why is it written that no extra step is required? For example, जैसे फ्लेवरिंग वगैरह मैंने बता दी एग्जांपल. ऑल्सो जब हम इसमें ग्रेविंग करते हैं, फॉर एनग्रेव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया डी लिखा हुआ है, तो ये डी पता है कब होता है? जब वो कंपैक्ट करते हैं ना डाई से, तो वहीं पे उसमें डी लिखा हुआ होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डाई कैविटी और ये पंच ऊपर से आ रहा है. ठीक है, कंप्रेस हुआ आपका टैबलेट के साथ, तो उसी पंच में डी एम्बॉस हो रखा होता है. ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स है नहीं इसके लिए रिक्वायर्ड. ठीक है, दिस इज सम ऑफ द advantages. Now, what are the disadvantages? Difficult to swallow in case of children and unconscious patients. तो उसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे. तो ये बेसिकली बहुत ही बेसिक वाली चीज है कि फॉर एग्जाम्पल पीसीएम है, तो अगर कोई अनकॉन्शियस है तो मैं पीसीएम नहीं दे सकती कि अच्छा मुंह खोल के मैं डाल दूं, वो कहीं भी अटक सकती है. ठीक है, तो उसके लिए तभी हम लोग क्या करते हैं, उन्हें डिप चढ़ा देते हैं, या कोई बेहोश हो रखा था तो इमीडिएटली डिप चढ़ा देते हैं ग्लूकोज वगैरह की. Then some drugs resist compression owing to amorphous and low density nature. तो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज अमॉर्फस? एक हमने पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा था, क्रिस्टलीन एंड अमॉर्फस ड्रग्स, पाउडर्स पढ़े थे प्री फॉर्मुलेशन में, सब भूल गए. Yeah, ma'am, we studied about that thing. तो अमॉर्फस क्या होता है? Ma'am, it is a kind of a solid arrangement in which the solid particles are not arranged in an orderly fashion or not a perfectly shaped solid particles are there. Right. What's your name? Ma'am, Shivam. अच्छा शिव, ओके ग्रेट. यस एब्सोल्युटली राइट, रैंडम ऑर्डर रहते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है, जो लोग रैंडम ऑर्डर में रहते हैं या फिर समझ लो बिल्कुल ही पाउडरी फॉर्म में, हमने क्रिस्टलीन पढ़ा था जिसमें कि सॉलिड अरेंजमेंट्स होती है. अगर मैं थोड़ा एग्जांपल बताऊं तो मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, वो होंगे क्रिस्टलीन. और अगर मैं वही बात करूं एमॉर्फस की, तो ये ऐसे से होते हैं. ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट्स होती है, स्पेस होता है काफी. तो ये वाले एमॉर्फस जो होते हैं ना, कई बार रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन को. तो अगर ये वाले पाउडर्स रेजिस्ट करेंगे कंप्रेशन को, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या मेरे पास सोल्यूशन हो सकता है इसका? कोई पाउडर के पार्टिकल्स रेजिस्ट कर रहे हैं कंप्रेशन को, तो व्हाट कुड बी द सोल्यूशन? मैंने डिस्कस करा है अभी. We can use binders. Absolutely right. What's your name? I am Kaloli. Okay, absolutely right. तो हम बाइंडर्स डाल सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो एटलीस्ट मुझे ये नहीं पता कि कितने हद तक हम, क्योंकि हमें बाइंडर ज्यादा भी नहीं डालने चाहिए. अब बताओ बाइंडर्स कितनी ज्यादा डालने चाहिए? एक लिमिट तक डाल सकते हो सिर्फ आप. ज्यादा डालने से क्या होगा? वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाएंगे. Lump formation. It will not disintegrate easily. एब्सोल्युटली राइट. किसी ने बोला हार्ड बन जाएंगे, बिल्कुल सही. और किसी ने बोला या किसी ने बोला कि डिसइंटीग्रेट भी होंगे. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा ड्रग का काम ये होना चाहिए कि ठीक है उसने कंप्रेस प्रॉपर्ली करा, ठीक से शेप ले ली, देन उसके बाद बॉडी में जाके उसे डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेट करके उसको अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना है.
तो अगर मैंने इतना बाइंडर डाल दिया कि वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या फायदा, राइट? तो सिर्फ बाइंडर्स की भी हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कि अगर हम सबसे मैक्सिमम बाइंडर कौन सा यूज होता है, उसकी पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन होती है जो FDA अप्रूव्ड होती है, कि उसी के अकॉर्डिंग उसी के रेंज में हमें करना चाहिए, ठीक है? Then drugs with poor wettability and low dissolution property are poor candidates for tablets. ये बहुत obvious है कि जिनकी wettability poor है या dissolution property कम है. Everyone is aware of the dissolution word? Is comfortable with dissolution word? Yes, ma'am. Okay. Even if you find a simple word, difficult, you can ask me. Okay. Now, for coating of bitter tasting tablets, it is preferred to offer capsule dosage form. तो क्या होता है, कोटिंग से भी कहते हैं कि कोटिंग बेसिकली टैबलेट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, बट टैबलेट कोटिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स लगती है, बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं, तो उस चीज के लिए थोड़ी मेहनत, टाइम भी कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो उस चीज को देखते हुए ये चीज है। ओके, नाउ अब इसमें जो रिटर्न मैंने अभी बताए हैं, ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? व्हाट डू यू थिंक आई एम मिसिंग? yes, अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग, ओके, बिकॉज पैकेजिंग का हम पूरा एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ टैबलेट बना रहे हैं और कितने फॉर्म्स की टैबलेट्स बन सकती हैं वो सब है। Ma'am, if yes, you go first. Actually, I spoke. Now you go first. So storage of tablets is much easier. We can add that in advantages. right, storage, what's your name? Kaloli. Kaloni, okay. Kaloni, look, storage, yes, it is easy, but tell me कि अगर for example अगर मैं उसे store कर रही हूँ अपने बैग में, for example अगर मेरी day to day life में मैं जा रही हूँ, store कर रही हूँ, इसमें भी precaution लेना जरूरी है, क्योंकि आपने I don't know कि day to day life में कुछ लोग ऐसा होता होगा, जैसे for example अपने बैग, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल देखिए, मैंने बैग के ऊपर हाथ रख दिया, या फिर मैं ऐसे नहीं रख सकती, अच्छा मैं फेंक रही हूँ बैग को, मैं उसके ऊपर हाथ वाथ भी रख ले, कुछ भी करे, तो आपने देखा हो कई बार क्रश हो जाती हैं टैबलेट्स, Yeah, ma'am. राइट? नाउ इसके लिए क्या होता है, स्टोरेज, यस यू आर राइट टू हाफ एक्सटेंड, क्यों? क्योंकि अगर हमने स्टोरेज जो पैकेजिंग वाला सेक्शन है, कि अगर हमने से बहुत ही स्टिफ पैकिंग करी है, ब्लिस्टर पैकेजिंग करी है, बहुत ही हार्ड पैकेजिंग करी है, जो कि रेजिस्ट कर रही है मेरे फिजिकल प्रेशर को, तो दैट्स ग्रेट, ठीक है, बट वही चीज है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ लिक्विड से बेटर तो स्टोरेज इसकी बहुत ईजी है, नो डाउट, ठीक है, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट हर चीज इसकी इजी है इन कंपैरिजन टू योर दिस लिक्विड, बट अगेन चांसेस हर चीज के हैं यहाँ पे, कम है बट है, Yes, ma'am. राइट? ओके, व्हाट एल्स डू यू थिंक वुड बी अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज? And shelf life is greater, and it doesn't need a medium for sticking. yes, this is a very good advantage कि शेल्फ लाइफ इन कंपैरिजन टू लिक्विड डोजेज फॉर्म इसकी ज्यादा होती है, और वो शेल्फ लाइफ इसकी इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि मैंने बताया कि माइक्रोबियल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ठीक है, तो आप इसमें एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो इसी के साथ है, विच इज शेल्फ लाइफ। व्हाट एल्स? Ma'am, tablet have accurate dose of drugs. Absolutely right. The tablets in comparison, if I compare it with your liquid dosage form, okay, this is with comparison to liquid dosage form, कि उसमें एक और चीज है which is accurate dosage, ठीक है, और इसमें यहाँ डाल देना कि इसका सोल्यूशन है बाइंडर्स, ओके, एब्सोल्युटली राइट, नाम भी बताओ साथ में, बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो यू ऑल। मैम सेजल, नाम सबको पता है ना? सेजल था अभी, सेजल था नाम अभी किसी का? मैम मी। ओके ओके, सेजल, यस, सो एवरीवन नो माय नेम, राइट? यस मैम, यस मैम। क्या नाम है?
शिवानी मैम। शिवानी मैम। ओके, तो इसलिए अपना जब भी आप आंसर देते हो ना मुझे नाम बताया करो, तो दैट्स व्हाई इंटरेक्शन ऐसे बढ़ेगी ज्यादा, ठीक है। ओके, तो और कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज? मैम सौम्या हियर। ओके, हाय तान्या। सौम्या मैम। सौम्या, सॉरी सौम्या। मैम tablets cannot be used in emergency purposes. Like अगर हमें emergency में तुरंत Okay, yeah, so that is a disadvantage I discussed now. They're difficult to swallow in case of children and unconscious patients. Patients for emergency also, like if we need a like quick rapid action, so tablet will take time to. My dear, you are not clear. Can you type? Okay, meanwhile she is typing. Anyone else? Ma'am, like she want to say ki that parentals, as compared to the parentals, they have like not quick action. Yeah, absolutely right. Absolutely right. Yes, Soumya. Now, anyone can tell me why the action is less in comparison to parentals? Parentals, she means to say is intravenous injections जो भी आपको लगते हैं, intravenous, intramuscular, ये सारे. तो parentals से इसमें disadvantage है. ये वाली बहुत बड़ी बात है. तो क्यों है ये? Ma'am, because parentals directly systemic due to circulation. GIT. Yeah, and tablets what has to pass First-pass metabolism. Absolutely right. Absolutely right. सबसे बड़ा disadvantage है इसमें first pass effect. Now, can anyone explain me? Apart from ये जो 2-3 लोग बोल रहे हैं, सौम्या, शिवम, कॉर्नेलियल समथिंग, मतलब जो भी है, I'm sorry, I'm very poor with names. तो इन सब के अलावा Tablets are resistant to temperature. No, not really, my dear. First, tell me what is first pass effect, and if it is Soumya or some मतलब जो पुराने बच्चे वो नहीं. What is first pass effect? Ma'am, Jidnyasa Jain here. Yes, go on. The drug, when it is administered orally before going to the systemic circulation, it goes to the liver and it undergoes first pass metabolism. Right, absolutely right, Jigyasa. Thanks. So basically, what is first pass effect is कि जब आप orally कोई drug देते हैं, हमने tablet ली. Can I explain? Yes, sure. Go ahead. What's your name? I'm Pranav. Yes, Pranav. Ma'am, the drug concentration is reduced when it reaches circulation. When it reaches the systemic circulation. Yeah, so why the drug concentration reduces? Because of first pass metabolism, right? Right? Yes, ma'am. Okay. So has everyone understood this? Let me Ma'am, I explain had it. a doubt. Yes. What's your name? Amorphous powder has it resists compressivity, but it has good wettability, and vice versa is the situation for crystalline powder. So which is more preferred? Sorry, can you repeat it again? Amorphous powder resists compression and it has good wettability, and vice But it versa has good is for wettability. crystalline. It has poor wettability. Crystalline powder has poor wettability. So which is more preferred, amorphous or crystalline? Look, it doesn't actually depend on this thing. It depends upon कि आपने powder अपना कैसे रखना है. ठीक है, इसमें भी है कुछ drugs होते हैं amorphous के जो resist करते हैं compression को. जरूरी नहीं है कि सारे drugs करें. तो वो इस चीज में ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ amorphous drugs अगर resist कर रहे हैं compression को, ठीक है, तब आप अपना binders डाल सकते हैं इसमें. Whereas अगर कुछ crystalline drugs, absolutely right, कि वो क्या पता wettability को मतलब इतना ज्यादा उनकी वेटेबिलिटी का नहीं है, तो हमें क्या चाहिए एट द एंड की वेटेबिलिटी हो. क्यों हो? क्योंकि जो बॉडी में जाके वो हमारे जो लिक्विड्स हैं, जो HCl है, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स हैं, बॉडी में जाके उसे डिसइंटीग्रेट होने हैं, तो उसे लिक्विड के साथ तो इंटरेक्ट करना ही है. तो मुझे वेटेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है मेरे फॉर्मुलेशन में, राइट? तो अब क्या होता है, जब मुझे वेटेबिलिटी को मतलब मैं जो मेरे क्रिस्टलिन पाउडर्स होंगे, तो अगर मुझे लगेगा कि उसमें कुछ है जो वेटेबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है, तो मैं उसमें वेटेबिलिटी एनहांसर्स डालूंगी. वेटिंग एजेंट्स जिसे कहते हैं.
Okay, ma'am. Thank you. वो भी एक टाइप का एक्सिपिएंट्स में आता है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, सो हाँ, फर्स्ट पास इफेक्ट, तो किसी को डाउट है फर्स्ट पास इफेक्ट में, या मैं एक्सप्लेन करूं? ओके, सिंपल सा, सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने टैबलेट ली, ठीक है? अब मैंने क्या किया, टैबलेट जब मैंने ली, तो फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली आपको पता है सारी चीजें कि हमारे जीआईटी से होते हुए जाता है। जैसे मैंने मेरे माउथ से एनगल्फ करा, फिर उसके बाद मेरा उसमें जाएगा इसोफेगल ट्रैक्ट में, देन जाके स्टमक में जाएगा, स्टमक से जाके फिर वो जाके लिवर पे चले जाता है जब मैं कोई टैबलेट को ओरली लूंगी। क्यों जाता है? जब ये तो पूरा उसका सिस्टमिक कहते नहीं पाथवे है पूरा ही, ठीक है? फिर लिवर में जाके क्या होता है, लिवर में आप सबको पता है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स है वो उस पे एक्ट करते हैं, किस पे? आपके ड्रग पे, ठीक है? अब बहुत सारे एंजाइम्स ड्रग पे एक्ट करेंगे और उसको रिड्यूस करने, जो उसकी फॉर एग्जांपल अगर 500 mg की मैंने पीसीएम ली है, तो लिवर के बाद वो जाएगा मेरे पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करने ब्लड के साथ, ठीक है? तो अब जो 500 mg का ड्रग आपने लिया है, वो सिर्फ क्या पता एंजाइम इतने ज्यादा जिस पे एक्ट कर गए कि उसको मेटाबोलाइज कहते हैं, मतलब उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उस ड्रग को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो क्या पता सिर्फ 300 mg बचे, तो टेक्निकली 300 mg आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। लिया आपने 500 mg था, ठीक है? उसमें 200 mg आपके लिवर ने मेटाबोलाइज करके ब्रेक डाउन कर दिया, 300 mg गया आपकी पूरी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और 200 mg फॉर एग्जांपल वो मेटाबोलाइज होके जाता है आपके या तो यूरिन या तो फीसिस के थ्रू निकल जाता है, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक तो नहीं बोलूंगी, बट कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बना देता है कि जो बहुत टाइम लेते हैं आपकी बॉडी से निकलने में। नाउ यू विल बी शॉर्ट, कोई मुझे बता सकता है, मैं हर क्लास में हर बच्चे से पूछती हूँ कि जो पीसीएम है तो उसकी हाफ लाइफ, या फिर आप बोलो हाफ लाइफ नहीं बोलूंगी, बट उसकी पूरी तरीके से आपके बॉडी से कब निकलता है वो, लाइक कि पीसीएम का कोई भी पाउडर का पार्टिकल भी ना रहे आपके पूरे बॉडी में, तो मुझे बता सकता है? 6 months. या आपने मेरी क्लास अटेंड करी थी क्या पुरानी वाली? What, ma'am? क्लास अटेंड करी थी क्या कोई पुरानी वाली? कौन है आपका नाम? Ma'am. Sunidhi. अच्छा सुनिधि, हाँ मैंने मतलब क्लास में बताती हूँ ये चीज, तो क्योंकि हम पीसीएम Yes, ना ma'am. बहुत उससे ले लेते हैं, लाइक अच्छा हमें सर दर्द हो रहा है, अच्छा हमें बुखार हो रहा है, अच्छा हम ले लेते हैं, तो बहुत ही ध्यान से लेनी चाहिए क्योंकि उसे 6 months लेता है प्रॉपरली गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी। ओके, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि पैरासिटामोल जैसे मैंने ली, तो फिर उसका मेटाबोलाइजिंग प्रोडक्ट क्या है? मेटाबोलाइट क्या है उसका? एन क्विनोलिन, जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। यस, एन-एसिटाइल क्विनोलिन, एंड वो इसलिए टॉक्सिक है, उसी की वजह से ही वो 6 months लेता है पूरा अच्छे से डिग्रेड और पूरी बॉडी से निकलने में, ठीक है? तो ये पूरा मेटाबोलाइज होता है लिवर में। एनीवेज, ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो ये था हमारा फर्स्ट पास इफेक्ट। एवरीवन इज क्लियर विद फर्स्ट पास इफेक्ट? यस मैम। ओके, तो ऑब्वियसली इसके अलावा भी देखो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत चीज मतलब बहुत ही माइन्यूट हो, बट ये सब है जो मेन चीजें हैं। एंड विद डिसएडवांटेजेस आपको पता, क्योंकि अब आप फार्मासिस्ट होने वाले हो 1 साल के अंदर, और तो आपको पता होना चाहिए कि उस चीज की डिसएडवांटेज है तो मेरे लिए वो क्या सोल्यूशन होगा उसका, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट विल डू विद टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। ओके, पहला है जो हम ओरली ले लेते हैं, दूसरा है जो हम ओरल कैविटी में रखते हैं। ओरली लेना मतलब पानी के साथ ले रहे हैं इन सब चीजों से। एक है हम डायरेक्टली ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं, एक है अदर रूट्स, ठीक है, और एक है कि हम प्रिपेयर एक पूरा सोल्यूशन फॉर्म में रखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो ओरली हम टैबलेट्स इंजेस्ट करते हैं। वन इज कंप्रेस टैबलेट्स, बहुत ही बेसिक वाली होती हैं, इनमें कोटिंग नहीं होती है क्योंकि अभी मैंने कोटिंग नहीं करी है। सिंपल सी, जैसे शिवम ने स्टार्टिंग में बताया, कंप्रेस कर दिया, पाउडर फॉर्म को कंप्रेस कर दिया, इजेक्ट हो गया, वो पूरा जो कोटेड अनकोटेड टैबलेट होती है कंप्रेस हुई भी आती है जो वो, एंड उसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वो है कि वो रैपिड डिसइंटीग्रेट कर जाती है एंड रिलीज हो जाती है क्योंकि उसकी कोई कोटिंग नहीं है, ठीक है? पाउडर लिया, उसे डाई में डाला, ऊपर वाले डाई से पंच हो गया एंड आपके इजेक्ट हो गया आपका टैबलेट। जैसे इसकी बेसिक एग्जांपल है हमारी पीसीएम, ठीक है? सेकंड इज मल्टी कंप्रेस टैबलेट्स, दिस इज बेसिकली फॉर इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आप भी देख सकते हो फिगर में, इज इट विजिबल? मतलब प्रॉपर्ली
ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे जो ये फर्स्ट लेयर नीचे डायग्राम में देखो, तो ये जैसे फर्स्ट लेयर है मेरी, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये ड्रग 1 है, फिर मेरे पास दूसरी लेयर है, सो दिस इज ड्रग 2 एंड दिस इज ड्रग 3, मेरे पास कॉम्बिनेशन में ड्रग्स है। नाउ कई बार क्या होता है, हमें कंपल्सरी मतलब ऐसे समझ लो कि हमें कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी भी है, प्लस ये तीनों ड्रग्स जो हैं इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे से, तो हम क्या करते हैं, एक टैबलेट बनाते हैं, एक उसको कंप्रेस करा डाई में जाके, उसके बाद एक लेयर बना दी, एक फिल्म की पतली सी लेयर बन जाती है, उसके बाद दूसरा उसको किया, कॉम्पैक्ट करा, पंच करा मशीन से, फिर से एक और लेयर बनाई फिल्म की, फिर उसके बाद तीसरी वाली, और फिर एक साथ कंप्रेस करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? मल्टी कंप्रेस कैसे बनती है कि मल्टी मतलब ये बार बार उसे कंप्रेस करा जाता है, एंड ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल है, 3 कई बार 2, यूजुअली 2 की बनती है, बट कई बार 3 की भी बन जाती है, ठीक है, so this is multi compressed tablets usually for incompatible ingredients or incompatible drugs, okay, understood? Ma'am, they are having a same pharmacological effect only, no? yes, for example जैसे अब मैं NSAIDs की बात करूं, तो आपने कई बार देखा होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ना टैबलेट लेबल के पीछे देखा करो कौन सा API है, तो अगर आपने कई बार देखा होगा तो लिखा होता है NSAIDs का ही फीवर को उतारने के लिए एक होता है निमोसोलाइड प्लस पैरासिटामोल, ठीक है, कई बार ऐसे आता है, तो लेकिन जो आपका निमोसोलाइड और पैरासिटामोल है वो दोनों तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वो दोनों नहीं होते और दोनों ही NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसलिए जब भी इसमें कॉम्बिनेशन में दूंगी, क्या पता कई बार 2 ड्रग्स नहीं मिलते हो, तो तब मैं उसे ऐसे मल्टी कंप्रेस टैबलेट के थ्रू दूंगी। Okay, ma'am. ऑब्वियसली बात है कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि किसी को पेट दर्द भी हो रहा है, किसी को फीवर भी हो रहा है, तो मैं ऐसे 2 को कंप्रेस करके दे दूं, ऐसे नहीं, एक ही क्लास के एक ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, बट जैसे निमोसोलाइड का एक्शन ज्यादा है, तभी कुछ लोगों को PCM से नहीं होता है, डोलो 650 से कम नहीं हो तो निमोसोलाइड प्रेफर करा जाता है, so that's why. Okay, any doubt so far? No, ma'am. तो फिर एक होती है शुगर कोटेड, बहुत ही इजी, शुगर की हम सुक्रोज की लेयर होती है, बट शुगर, चलो हम ये चीज बाद में करेंगे डिफरेंस, पहले एक शुगर कोटेड समझ लो कि शुगर कोटेड मतलब जब उसकी कोटिंग सुक्रोज लेयर होती है, ठीक है, कई बार उसकी कोटिंग सुक्रोज लेयर से होती है, कई बार उसमें एक्सिपिएंट सुक्रोज का लगता है, ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंस है, तो एक होता है कि आप ना उसे यूजुअली अब क्या किया जाता है, सुक्रोज की लेयर बना दी जाती है बाहर, फॉर एग्जाम्पल अगर इमेजिन करो PCM है, PCM के बाहर मैंने सुक्रोज की लेयर रख दी, ठीक है, तो बेसिकली पेशेंट कंप्लाइंस तब भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी तब भी बढ़ेगी जब मैंने सिर्फ कोटिंग करी है बाहर एक सुक्रोज की लेयर की, क्योंकि जब वो माउथ में लेते हैं तो उसे कड़वापन नहीं आना चाहिए, पेशेंट को बिटरनेस नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वंस उसे बिटरनेस आ गई तो पेशेंट यही सोचता है यार फिर से नहीं लूंगा मैं ये दवाई, तभी बच्चे जो है तभी वो अवॉइड करते थे बचपन से ही, जैसे हम लोग भी थे कि अरे यार ये तो कड़वी होगी, वेयर एज अगर कोई कफ सिरप होता था तो हम बहुत खुशी से ले लेते थे, ठीक है, तो एक वो चीज होती है, और एक चीज होती है, तो यूजुअली क्या हुआ था, जैसे बहुत ही पुराने, अब तो बहुत कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज आ गई है, बट ट्रेडिशनली क्या हुआ था कि जब हमें कोई शुगर कोटेड करना था या फिर शुगर सुक्रोज वाली टैबलेट बनानी थी, हम क्या करते थे, हम ड्रग लिया, ठीक है, उसमें हमने सुक्रोज को मिक्स करके फिर पंच कर दी, ठीक है, उससे क्या होता था, सुक्रोज की क्वांटिटी ना बहुत ज्यादा जाई जा रही थी, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ माउथ तक रखना है कि वो जो बाहर की लेयर है ना वो उसमें डिसॉल्व होकर मैं एकदम से पानी पी लेती हूँ तो वो एनगल्फ हो जाती है, स्टमक में चले जाती है, ठीक है, क्योंकि जितने भी शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं तो कोटिंग भी ना इनकी ऐसे नहीं होती कि सिंगल कोटिंग कर दी, इनकी कोटिंग भी बहुत सारी लेयर्स की बनी जाती है, पहले एक सिंपल सी फिल्म बनाई जाती है, ठीक है, उसके बाद एक और कोटिंग होती है, फिर 2-3 लेयर्स और बनते हैं, फिर उस कोटिंग के बाद बाहर एक प्लास्टिक की फिल्म लगाई जाती है ताकि की अपीयरेंस में अच्छी रहे, वो जो हम पढ़ेंगे ना टैबलेट कोटिंग में, तब आपको पता चलेगा कि शुगर कोटेड में ऐसा क्यों लिखा गया, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है शुगर कोटेड टैबलेट्स में, दैट वेट इंक्रीज बाय 50%, मतलब किसी का अगर 100 mg है, ठीक है, तो बाद में जाके इसका 50 मतलब 150 mg बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, ठीक है,
तो ये बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज होता है शुगर कोटेड टैबलेट से, क्योंकि कोटिंग की लेवल्स, कोटिंग की लेयर्स इतनी ज्यादा है, ठीक है। देन होता है फिल्म कोटेड टैबलेट्स, बेसिकली पॉलीमर की फिल्म होती है, वो कलर्ड भी हो सकती है, बट इसके वही है एडवांटेजेस क्या है शुगर कोटेड से, कि इसका जो वेट है वो 8 to 10% बढ़ेगा मैक्स टू मैक्स, या 2 to 8, आई थिंक 2 to 8% बढ़ता है ये, लेकिन शुगर में 50% इंक्रीज होता है, लाइक अप टू 50%, विच इज वेरी लाइक हैवी हो जाती है टैबलेट। अगर टैबलेट हैवी हो गई तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, इन सब में दिक्कत आती है, ठीक है। Then film coated is more durable, it is less bulky and less time consuming. कि film coating की इतनी सारी layers भी नहीं लगानी पड़ती जितनी sugar coated में डालनी पड़ती है, ठीक है। Any doubt in the sugar and film coated? No, ma'am. Okay. Next is delayed release. Word ही पता चल रहा है, delayed release मतलब जो धीरे धीरे रिलीज होगा, जो रिलीज को प्रोलॉन्ग करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पीसीएम की सिंपल सी टैबलेट मैंने ली तो आपको पता है कि उसका इमीडिएट रिलीज होता है, राइट और रॉन्ग? अब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे फीवर है तो मुझे उसका इमीडिएट एक्शन चाहिए, मैं कोई भी ड्रग लूं कि मेरे 15-20 मिनट में जल्दी से एक्शन करे। अगर मैं डिलेड रिलीज दूंगी, डिलेड मतलब आराम आराम से रिलीज हो ड्रग, तो भाई तब तो मेरा बुखार पता नहीं कौन से लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट। फीवर को मैं जल्दी से जल्दी टैकल करना है ना। डिलेड प्रोलॉन्ग रिलीज में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सस्टेन एंड एक होता है कंट्रोल रिलीज। सबने वर्ड सुना होगा सस्टेन एंड कंट्रोल एंड एंट्रिक। यस मैम। व्हाट डू यू मीन सस्टेन, बिटवीन सस्टेन एंड कंट्रोल बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों ही डिलेड है, ठीक है, दोनों ही प्रोलॉन्ग करेगी, पर सस्टेन और कंट्रोल में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्या है वो? ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। कोई एक बच्चा, मैम yes speak. How correct is this, but I guess the main difference lies is in a sustained release tablet, the disintegration or the breakdown or the part of the drug which goes down in the system is in case of sustained release, it is not defined that okay this much will break, but in case of control release it is defined, like if 1 milligram is about to break, then in control release only 1 milligram will break, but in case of sustained might be one less than 1 or 2 milligram will also break. Okay, who is this? Shivam? Yeah ma'am, I don't know how correct is this, but yeah. Okay, okay. Yes, partially correct, but I want you all to search more on this, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट ले लो, जो भी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी तो मैं पूछूंगी सस्टेन वर्सेस कंट्रोल, यू कैन राइट इट डाउन एनीवेयर, सबके लिए है ये। लाइक अभी मेरे पास प्रेजेंट है 53, आई थिंक मैं तो 52 बच्चे हैं, मुझे 52 के 52 का आंसर चाहिए, ठीक है। जस्ट सिंपल 2-3 लाइन का भी हो सकता है जो आप समझे हो, क्वेश्चन 1 करके ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। तो आप शेयर भी, मैं शेयर करने के लिए भी बोल सकती हूँ कि स्क्रीन को शेयर करो, तो अपने लैपटॉप में जहां पे भी है उसमें रख देना, तो वहां से मैं देख लूंगी। एनी वन ऑफ यू 52 में से जितने 52 है मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ। सिंपल 2-3 लाइन का सर्च करो इसमें कि सस्टेन और कंट्रोल रिलीज में डिफरेंस क्या है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब शिवम मे और मे नॉट बी करेक्ट, आई वोंट टेल। ओके, नाउ एंट्रिक मींस जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, मतलब बेसिकली सारी जो ये चीजें हैं ये स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होके एब्जॉर्प्शन करती हैं। बट कुछ ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो चीजें मुझे जैसे मुझे सपोज फॉर एग्जांपल कोई चीज है जो मुझे इंटेस्टाइन में दिक्कत है जिस चीज से, ठीक है, मेरी इंजरी, मेरा कोई डिजीज इंटेस्टाइन रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एंट्रिक कोटेड वाली टैबलेट्स लूंगी। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स क्या होती है, पहले पता है एंट्रिक वर्ड ही यही होता है कि इंटेस्टाइन, ठीक है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स वो होती है कि जो स्टमक के पीएच में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, ठीक है, स्टमक में पीएच में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, वो एज इट इज जाके जो मेरा इंटेस्टाइनल पीएच है और फ्लूइड है उसी में जाकर डिसइंटीग्रेट होगी और अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगी, ठीक है। 1 सेकेंड, यस, तो दैट इज एंट्रिक कोटेड, ठीक है। अब मुझे बताओ जल्दी से पीएच ऑफ स्टमक एंड पीएच ऑफ इंटेस्टाइन।
गूगल कर रहे हो क्या? जल्दी बताओ। Yeah, ma'am. Ma'am, in case of stomach, the pH ranges from 1 to 2, and in case of intestine, it ranges from 6.8 to 7.4. Okay, how many of you agree with Shivam? No one agrees. Ma'am, agreed. Okay. Yes, Pranav said ma'am. yes. Okay, absolutely right. To be precise, 1 to 3.3 is stomach and 6.8 and onwards is of intestine. भाई pH याद रखना बहुत जरूरी, लिस्ट बना लो pH इन सबकी. Why pH of skin is? What is pH of skin? रेंज बता दो एग्जैक्ट, तो कभी भी किसी की सबकी डिफर करती है. No idea, ma'am. सेकेंड होमवर्क, सेकेंड क्वेश्चन. पीएच जो मेन चीजों के हैं, स्किन, टीयर्स, राइट इट डाउन. सलाइवा का सलाइवा, टीयर्स, स्किन, ब्लड, stomach, small and large intestine, and urine. Pranav, can you repeat the question for me? Yes, ma'am. Can you repeat the question जो मैंने अभी बोला? And the difference between sustain and control is? Okay, and second? कहाँ थे बेटा? मुझे चाहिए है लास्ट टाइम प्रणव, नेक्स्ट टाइम प्रणव आपसे ही पूछूंगी मैं. ओके. अनुष्का, can you repeat the second question for me? Yes, ma'am. Ma'am, pH of stomach, pH of small and large intestine, then tears, skin, saliva, blood, and urine. That's it? Yes, ma'am. And yes, ma'am. Okay, thank you Anushka. Yes, ma'am. ठीक है. प्रणव, पे अटेंशन भाई, कहाँ हो? Yes, ma'am. Okay. Anyways, ठीक है. और सिक्स इज chewable tablets, जो बहुत ही बेसिक है. रैपिड disintegration when chewed and absorbed directly from the mouth. एग्जाम्पल एंटासिड टैबलेट विच इज डाइजीन, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है. पूरी क्लास में डाइजीन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, इन सबके एग्जाम्पल जो बेसिक है उन्हीं से हम टैबलेट्स खत्म कर देंगे. ठीक है. एनी डाउट्स इन टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली? Hypoglycemic drugs. Sorry? Can you repeat the question? What was the question? Second question. No, No, ma'am. now. Now what you ask? Second question, no? Second question was pH. Right. Now दो just question ही दिए what? बेटा. नहीं Ma'am, you अभी asked a मैम question आपने just पूछा ना now. now. Yeah. How? Which of the following tablet is ingested? Something like that. नहीं, मैंने तो ये बोला chewable tablets होती है, तो पूरा क्लास टैबलेट्स हम इसमें पढ़ लेंगे. डाइजीन, Okay, ma'am. ओके. ठीक है. मुझे लग रहा है कॉलेज से आए हो ना, कॉलेज था ना, ऑनलाइन क्लासेस थी. Yeah, ma'am. या ऑनलाइन क्लास में तो रिकॉर्डिंग सुनते होगे. नहीं मैम, ऐसा लेक्चर्स होते हैं. अच्छा. इस क्लास में भी कोई अगर ऐसे रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना सबको, लेकिन क्लास में अटेंटिव रहा करो. अब मैं पीछे से बच्चों को उठाऊंगी, जैसे अभी प्रणव सो रहा था. ओके. ठीक है. तो मैंने कहा इसमें टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली में किसी को डाउट है? ये पूछा था. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. देखो टैबलेट ऐसी दिखती है, देखिए डाइजीन की. जिनका पेट सही रहता है तो उनको दिक्कत होगी नहीं, कभी खाई भी नहीं होगी. ठीक है. ओके. नाउ टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड इन ओरल कैविटी. जो मैं बात कर रही थी कि ओरली लेना अलग है, ओरल कैविटी में प्लेस करना अलग चीज है.
फर्स्ट वाली जो चीज है, तो मुझे बता सकता है इस टाइप की टैबलेट्स को क्या वर्ड है? फर्स्ट एंड सेकंड पिक्चर देखो। सॉरी, buccal and sublingual. एब्सोल्युटली राइट। तो एक है बक्कल कैविटी में प्लेस हो जाती है और एक है सबलिंगुअली, ठीक है। तो ठीक, अब इसमें ना जो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है वो बता देती हूँ। पहले बक्कल कैविटी सबको पता है कि बक्कल कैविटी में प्लेस की जाती है, वेयर सबलिंगुअली अंडर द टंग। ओके, थिकनेस बक्कल कैविटी की 500 माइक्रोमीटर के अराउंड ली जाती है, थिकनेस जो सबलिंगुअल की है वो 100 to 200 माइक्रोमीटर की, ठीक है। बक्कल कैविटी से स्लो परमिएशन होता है बिकॉज देयर इज लेस वैस्कुलराइजेशन, ज्यादा ब्लड वेसल्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे करके होता है। वैसे सबलिंगुअली में यू माइट हैव सीन अंडर द टंग की बहुत सारी वेन्स है, बहुत सारी वैस्कुलराइजेशन ज्यादा होता है, तो परमिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं ड्रग का, वो सबलिंगुअली ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बक्कल। बक्कल की फिर थिकनेस कम होनी चाहिए। सॉरी, बक्कल हैज मोर थिकनेस, बट वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन कम है, तो फिर थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, उससे वो मतलब ये वो आपको डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यूजुअली जो बक्कल वाली दी जाती है, वैसे इट्स माइक्रोमीटर, 500 micrometer is more or 200 micrometer is more? What is micrometer? A unit of measurement, which is that I know. This is the unit of measurement, Shivam. Which is 10 to minus 6 of a meter, which is 10 so which to is minus smaller, 6. Right? So 200. So basically, it's 10 to the power minus micron is 6. Okay. Yeah. So basically, yes, sublingually is less and 500 is more. But the thing is, जब हम बक्कल को एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब आपको अल्सर होते हैं, ठीक है, तो यूजुअली अब तो ऑइंटमेंट्स आ गए हैं, बट पहले अल्सर, जब अल्सर मतलब छाले जो होते थे मुंह में, ठीक है, या फिर यूजुअली जब हमें कोई डेंटल पेन होता था उस साइड में, दांतों में, वो भी कॉर्नर्स में, तो फिर क्या करते थे, हम वहां पे प्लेस कर देते थे। एंड हम चाहते थे कि यूजुअली क्या होता है, जब भी आप उस स्पेसिफाइड एरिया में होते हो डेंटल, तो आप चाहते हो कि धीरे धीरे उसका एक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डेंटल कोई पेन है, अगर दांतों में आपको पीछे की साइड में उसमें पेन है अगर, तो आप चाहते हो कि उस जगह कन्फाइंड होके वो धीरे धीरे रिलीज हो। या फॉर एग्जांपल यूजुअली बक्कल में ऐसा भी होता है कि डेंटल जब आपको कैविटी निकाल दी जाती है, और ऐसा बोला जाता है जब आप माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होने लग जाती है जो आपकी कैविटी में होती है, तभी कैविटी को हटा बोलते हैं फिल करवा दो जल्दी से, ठीक है। जब आपका उस साइड से, जब भी किसी को कीड़ा लगा होगा कभी, तो उस साइड में वो दांत को निकाल दे जिस दांत में आपका कीड़ा लगा है, और कुछ दिन उसको रखते हैं। एंड कई बार आपको बोलते हैं कि आप इसमें चलो ठंडा मत खाओ, ठंडा खाओ एंड गर्म मत खाओ, या फिर आप उसको ध्यान रखना क्योंकि वो कैविटी में फिर से कीड़ा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बक्कल में बेसिकली होता है कि उस साइड में रखें और धीरे धीरे जाके, सपोज मैं कोई एंटी माइक्रोबियल वाला कोई ड्रग दे रही हूँ, या फिर मैं ऐसे कोई दे रही हूँ जो प्रिवेंट करके रखे मेरे उस जगह के कंटेमिनेशन को, तो मैं चाहती हूँ वो धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे परमिएट हो, धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। ऑल्सो सबलिंगुअली में जो स्लो फास्ट परमिएशन है, उसका मतलब ये नहीं कि जल्दी से डिसॉल्व होकर निकल जाए। मैं सबलिंगुअली फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू कॉल दैट, नाइट्रोग्लिसरीन, किसके अंदर आता है नाइट्रोग्लिसरीन? एंजाइना पेक्टोरिस, राइट? यस मैम। यस मैम। तो एंजाइना में एक बात बताओ मुझे एंजाइना में ट्रीटमेंट जल्दी चाहिए या मैं चाहती हूँ स्लो आराम से होता रहे? व्हाट इज एंजाइना? कैन एनीवन टेल मी? Yes, Amir, absolutely right. Glycerin, trinitrate, nitroglycerin सब सबलिंगुअली दी जाती हैं एंजाइना वाले पेशेंट्स को। क्यों? एंजाइना क्या है? पेन इन हार्ट, पेन इन चेस्ट, हार्ट कोई। तो अब उसमें क्या होता है, आपको जल्दी से जल्दी क्योर करना है। So that's why हम लोग, अब देखो क्या है, जो भी चीज हमने माउथ में रखी, ओरल कैविटी में रखी, क्योंकि एट द एंड बक्कल सबलिंगुअल सब चीजें ओरल कैविटी है, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने कोई मेडिकेशन फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन बक्कल कैविटी में लगी, मुझे पता है कि वहां पे मेरा लेस वैस्कुलराइजेशन, मतलब लेस वेन्स एंड ये सब ज्यादा मेरी अंडर द टंग ज्यादा है, वेयर एज बक्कल की साइड कम है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि मुझे जल्दी से जल्दी पेशेंट को ठीक करना है, तो मुझे अंडर द टंग रख के जल्दी से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो, क्योंकि वहां पे वेन्स एंड ये सब ज्यादा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्ट परमिशन एंड मोर वैस्कुलराइजेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद द
कि अच्छा इसकी इतनी ज्यादा क्यों है, इसकी इतनी कम क्यों है। ऑल्सो मुझे सबलिंगुअली में जितनी छोटी होगी वैसे बार बार देती रहूंगी, लेकिन मेरा वैस्कुलराइजेशन ज्यादा है। इट्स जस्ट कि हम थिकनेस और इसमें इससे डिपेंड भी करते हैं। जब आप अंडर द टंग देते हो ना तो एब्जॉर्प्शन वहां सबसे ज्यादा हो रही है, बट वैसे ना वो डिजोल्व इतनी जल्दी नहीं हो पाई। मतलब आपका सलाइवा कर लेगा डिजोल्व, लेकिन उसको जाने में यहाँ पे प्योरली बेस है कि कैसे आपका परमिएशन जा रहा है। ठीक है, मुझे बक्कल में लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जो बक्कल, आपको पता है कि बक्कल में हम, और एग्जांपल बताओ बक्कल का कि कौन से हम टैबलेट है जो बक्कल के थ्रू देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया एक अल्सर्स के टाइम पे, अल्सर सोर के टाइम पे। और बताओ लॉजेंजेस जब वो खांसी रोकने के लिए यू जब वो जस्ट देते टेक हैं इट ओरली ओनली, चुएबल टैबलेट्स में आती हैं वो आप रखते नहीं, क्योंकि आपको अपने कफ को आप टंग के उसमें रख लोगे, पर आप यूजुअली साइड में रखोगे, टंग में रख लोगे धीरे धीरे जाके, ताकि वो उसका जो लिक्विड है वो जो आपके इनर लाइनिंग में जाता रहे। पर यूजुअली जो बक्कल, इसमें बक्कल पाउच जिसे कहते हैं, हम इसमें यूजुअली वो वाली चीजें यूज करते हैं, या डॉक्टर भी वो करता है जो चीज हमारे डेंटल, क्योंकि हमारे ना इस चीज में, क्योंकि क्या होता है ऊपर वाले, सपोज आपके ऊपर वाले टीथ में कुछ हुआ, मतलब ये कैविटी वाली चीज हुई, तो अगर हम टंग में रखते हैं ना तो वो इतना प्रॉपर्ली ऊपर नहीं जा पाता, लेकिन बक्कल कैविटी के थ्रू वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऊपर और नीचे हो जाती है टीथ के बीच में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वैसे भी जनरली अब तो इंजेक्शंस वगैरह आ गए हैं, वो लोग एनेस्थीसिया देख के सुन कर देते हैं, उसके बाद वो दे देते हैं इंजेक्शन। बक्कल का ज्यादा यूज होता नहीं है, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बक्कल एंड सबलिंगुअल। एंड दूसरा ये थिकनेस इज ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पे ड्रग्स की बात नहीं हो रही है। तो किसने ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे? सॉरी, actually you're not audible. Hello, yeah. Ma'am, my name is Sifkan. Your name is? Sifkan. Can you write it down in the chat box? Yeah, sure. Yes. Yeah. So basically ये थिकनेस बता रही हूँ मैं उस मेम्ब्रेन, जैसे पीछे जो हमारा, जिसे कहते हैं हम गम्स, तो उसकी थिकनेस उस टाइम पे 500 माइक्रोमीटर अराउंड होती है। सिफकन, ओके, या सिफकन। सो और जो थिकनेस हमारे अंडर जो उसमें होती है, वो लाइनिंग की बात करें, दैट इज 100 to 200। हमें पता है कि बहुत पतली होती है अंडर द टंग, ठीक है, बट इट हैज एट द सेम टाइम जो वैस्कुलराइजेशन है वो हमारा अंडर द टंग सबलिंगुअली ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज थिकनेस ऑफ योर, Yeah, I thought it was thickness of the tablet. That's why. No. That we can decide it on your, वैसे भी जनरली भी जो नाइट्रोग्लिसरीन की कभी अगर किसी ने देखी होगी, वैसे तो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट छोटी ही होती है ताकि जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन भी हो पाए, क्योंकि बड़े टैबलेट को थोड़ा टाइम लगेगा, छोटे टैबलेट बहुत जल्दी हो जाती है। बट एनीवेज दैट हैज नथिंग टू डू विद, दिस इज अबाउट द थिकनेस, कि आपको ही पता है कि अंडर द टंग बहुत ही पतली लेयर होती है, whereas जो बक्कल वाली चीज में है वो थोड़ी सी स्टिफ होती है, गमी होती है, गम्जी है वो, क्योंकि बट थोड़ी सी मोटी होती है लेयर। एंड ऑल्सो दिस मे वेरी, अगर आप जैसे से एडिपोज टिश्यू की लेयर आपके चीक्स वगैरह में ज्यादा बढ़ती रहती है, तो वो अंदर की साइड से बढ़ते रहते हैं गम्स। ओके, Yes, ma'am. Thank you. okay, so next is second Crouches and dental code. Now बहुत ही ऑब्सोलीट हो गए हैं अब ये। So lozenges cannot be chewed and swallowed. This kept in oral cavity and absorbed with time, whereas one second. Yes. Now is it visible? Yes, Yes, ma'am. Yes, so lozenges cannot be chewed and swallowed. It is kept in oral cavity and absorbed with time, whereas pouches can be chewed. तो ये lozenges and pouches में just दो difference याद रखना।
ऑल्सो जब भी हम ये जो लॉसेंजेस वगैरह जो भी हम कफ्स की टैबलेट यूज करते हैं वो हम यूजुअली टंग के ऊपर रखना प्रेफर करते हैं। क्यों? और बक्कल कैविटी में नहीं, क्योंकि टंग से डायरेक्टली हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में जाएगी, ठीक है। वेयरएज बक्कल से बहुत ज्यादा टाइम ले सकती है, या फिर बोलो कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन नहीं आएगा। वेयरएज आप खुद इमेजिन करो, अगर आप टंग के ऊपर रखोगे, ठीक है, फिर आपके इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में ज्यादा जल्दी जाएगी उसका सलाइवा से मिक्स होके, राइट। सो जैसे लोसेंजेस कैन नॉट बी च्यूड एंड स्वॉलोड, ठीक है, वेयरएज स्ट्राउचेस च्यू कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई क्योंकि अब आ गए कफ सिरप्स, ठीक है, एंड दे आर फार वे बेटर देन दिस। Then dental cone intended to be placed in the empty socket, जो मैंने बताया था कैविटी रह जाती है टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद। They may contain antibiotic, antibacterial or antiseptic, ठीक है, that is what dental cone is for। नाइट्रोस्टैन नाइट्रोग्लिसरीन की सबलिंगुअल टैबलेट्स जो देते हैं, देखो 0.4 mg बहुत ही कम होती है, ठीक है, छोटी छोटी टैबलेट्स दी जाती है। Now tablets that form a solution, तो 4 टाइप की होती है जो सोल्यूशन फॉर्म में दी जाती है, मतलब होती है वो टैबलेट्स ही हैं बट उनको डिसॉल्व करके सोल्यूशन फॉर्म में दिया जाता है। एक होता है एफर्वेसेंट, एक होता है डिस्पेंसिंग, हाइपोडर्मिक एंड टेबल ट्राइचुरेट्स। एफर्वेसेंट बहुत ही बेसिक टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय एफर्वेसेंट? Ma'am, which contains CO2, produce bubbles while when it is put in water. Right. Which releases CO2, right? तो किसी ने वो देखा है बबल्स जब आते हैं, जब कोई दो मिक्सचर मिक्स कर दो, जैसे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस CO2, तो एफर्वेसेंट जो बबल्स निकलते हैं, झाग निकलता है, दैट इज कॉल्ड एफर्वेसेंट इन लेमन लैंग्वेज। तो उसी चीज का है। तो गैस इज रिलीज व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है। फिर एक होता है डिस्पेंसिंग, कंटेन एक्सिपिएंट्स दैट डिसॉल्व क्विकली एंड फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। Hypodermic contains one or more medicaments with readily water soluble ingredients. They are dissolved in sterile water or water for injections. You know, इन tablets के साथ water for injection जो sterile water होता है वो पैक्ड आता है। फिर जब हमें देना होता है जिसे पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, वो टैबलेट ली, मिक्स करी स्टेराइल वाटर के साथ और उसे IV IM जैसा भी रूट सुटेबल है उसके थ्रू दे दी। ये सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई है, हाइपोडर्मिक ये सब। क्यों भाई? अगर मुझे पेरेंटली देनी है तो मैं डायरेक्टली ड्रग पेरेंटली दे देती हूँ। मैं क्यों उसको वाटर फॉर इंजेक्शन की भी कॉस्ट लूं, टैबलेट की भी कॉस्ट लूं, मिक्स करूं और फिर पेरेंटली दूं, राइट? तो सारी चीजें ऑब्सोलीट होगी, बट हमें पढ़ना है क्योंकि ये वो एक टाइप ऑफ टैबलेट्स में है। देन टेबल ट्राइचुरेट्स, स्मॉल टैबलेट्स यूजुअली सिलिंड्रिकल इन शेप कंटेनिंग पोटेंट मेडिकामेंट विद डाइल्यूएंट। अब मुझे बता दीजिए, मेरा फेवरेट वर्ड आ गया पोटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंट? पोटेंसी, Hazardous. Sorry? Guess anyone? Potency मैंने इतनी बार पढ़ाया, इस क्लास को नहीं पढ़ाया था सुनगी थी, तो आपको तो पता होगा। Ma'am, maybe it is capable of curing, like potency, उसका ability होता है उतना क्योर करने का, मतलब एक्शन होता है। Yes, mechanism of action होता है। Ma'am, the amount of drug required to show its action. The amount of drug required, तो मतलब PCM 500 mg, तो मैं 500 उसकी mg उसकी पोटेंसी है। मतलब 500 mg में मेरा फीवर ठीक हो रहा था, 500 mg is the potency of paracetamol. Ma'am, maximum action or Low therapeutic index. effective. Max, Ma'am, sorry, therapeutic efficacy. थेरेपेटिक मतलब थेरेपेटिक एफिकेसी मतलब कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही ना। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय थेरेपेटिक एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब इसका मतलब यही है कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा सही बोल रहे हो बट उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो। Hello? Ma'am, Ma'am, Potency. it has a strong effect. यस कोई और भी बोल रहा था। Potent medicament has a strong effect. Means a Strong- correct effect which has to be produced. Strong effect which has to be produced by the drug. Yes, ma'am. शिवम, right? शिवम ना? नहीं, Pranav.
तो इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आमिर saying ability of the drug to bind with the receptor to produce maximum effect. आमिर वही मतलब अभी शिवम ने भी बोला what is the maximum effect. किसी अगर मैं पीसीएम ले रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसका काम है कि वो बुखार को ठीक करे, तो अब इससे ज्यादा क्या करेगा वो, बुखार को ठीक ही तो करेगा. मैक्सिमम इफेक्ट मतलब Ma'am, small doses give like more effect. what's your name, my dear? Kushumita. कुसुमिता. Yes, ma'am. एब्सोल्युटली राइट. तो बेसिकली कुछ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कुछ नहीं होता. इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बात बताओ, पीसीएम है, वो इससे ज्यादा इफेक्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, एपिलेप्सी थोड़ी ठीक कर देगी. पीसीएम है तो वो बुखार ही ठीक करेगी. पोटेंसी मतलब सिंपल सा है, कम डोज में अच्छा इफेक्ट दे रही है, अपना पूरा इफेक्ट दे रही है. फॉर एग्जाम्पल मेरा पास है ड्रग ए और ड्रग सेकेंड, ठीक है, 2 ड्रग है, 2 पेशेंट को दे रही हूँ मैं. ये 2 पेशेंट समझ लो, चलो ठीक है. ये पेशेंट 1 है. ओके, लेट मी टेक. अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल एक है मेरे पास ये शिवम, एक है शिवम और एक है आमिर मेरे पास, ठीक है. इन दोनों को मैंने सेम ड्रग दिया है, बट दोनों की मतलब 2 अलग ड्रग दिए, चलो ठीक है, 2 अलग ड्रग दिए. शिवम को मैंने दिया है पीसीएम, ठीक है, और दूसरे वाले को आमिर को मैंने दिया एस्पिरिन, ठीक है. पीसीएम मैंने दिया 500 mg. अच्छा, एस्पिरिन का काम भी होता है क्योंकि एनसेड्स के मतलब फीवर ये भी कम करता है, ठीक है. तो 500 ये मैंने दिया उसको 1000 mg मतलब 1 ग्राम, ठीक है. दोनों फीवर कम कर रहे हैं, तो दोनों में से पोटेंट कौन सा हुआ ज्यादा? दोनों फीवर कम कर रहे हैं, दोनों किसका कौन सा ज्यादा पोटेंट है? पैरासिटामोल मैम. किसी को डाउट तो नहीं कि एस्पिरिन है? तो बेसिकली कम डोज मतलब 500 mg में अगर मेरा काम करे तो मैं 1000 mg क्यों दे रही हूँ उसको, राइट? यस मैम. सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट? यस मैम. पोटेंसी, एफिकेसी, ये सारे वर्ड जो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, ये बहुत जरूरी याद करना. तो इसको प्लीज याद रखो. मैं नेक्स्ट क्लास फिर से पूछूंगी पोटेंसी मतलब क्या होता है. जब भी मैं हर क्लास में बच्चे से पूछती हूँ, बच्चे भूल जाते हैं या बोलते हैं पता नहीं. तो हमेशा क्लियर रखो. डिफरेंट पोटेंसी मींस कैसे कहते हैं ना, ये ड्रग ज्यादा ए इज मोर पोटेंट देन बी, कई बार पढ़ा होगा हमने केडीटी में. तो पोटेंट मतलब होता है कम उसमें मेरा काम हो रहा है, तो मैं ज्यादा ड्रग क्यों दूं उसको, ठीक है. देन अब जल्दी से हम एग्जांपल्स करते हैं एफएफएसएन के. एफएफएसएन के एग्जांपल्स हमने देखे हैं एस्पिरिन, ठीक है, वो एसिड है, जब वाटर का मिक्स करती हूँ CO2 रिलीज होता है. ये ऐड देखा होगा सबने, ठीक है, इनो वगैरह का नहीं आता जो ऐड वगैरह आता है वैसा. डिस्पेंसिंग, देन हाइपोडर्मिक, फिर ऐसे ट्राइचरेट्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप्स में, ठीक है. देन टैबलेट्स बाय अदर रूट व्हिच इज ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन, प्लेस्ड अंडर द स्किन, and inserted subcutaneously by means of minor surgical operation or slowly absorbed. It must be sterile जब implant कर रहे हो उसे. Then mainly used for administration of hormones, ठीक है. तो ऐसे implantation ये ट्यूब्स होती है, फिर यहाँ पे आगे डालते हैं ड्रग को, फिर इंसर्ट करते हैं एंड ये बाहर आ जाता है. फिर ये तो ट्यूब है जो इंसर्ट करने के लिए यूज होती है. तो बेसिकली ऐसे कोई ट्यूब सी होती है, वो इम्प्लांट अंदर डाल देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स ने वो देखा होगा, what do you call that, मैं नाम sorry, accessories, pessary मैम. Pessaries, yeah, that is vaginal को बोलते हैं, vaginal को pessaries बोलते हैं. दूसरा as an example in implantation का I was telling you about contraceptives. Yes, you can say an example is contraceptive क्योंकि उसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं. बट डे टू डे लाइफ में मैंने एग्जांपल बिल्कुल भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया. बट एटलीस्ट सॉरी, टैम्पन, या टैम्पून, या थैंक्स. व्हाट्स योर नेम? हार्दिका. हाँ, थैंक्स. तो मैं ये भूल गई थी. तो अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें, टैम्पून्स आते हैं, तो फिर वो होते हैं कि एक इम्प्लांटेशन का वो ये कि आपने इंसर्ट करा उसे,
ठीक है, एंड स्लोली जो भी उसका एक्शन है उसने अपना कर लिया, देन आप उसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे भी होता है, मतलब उसे प्रॉपरली अंदर ही नहीं रख, ऐसा नहीं कि इम्प्लांटेशन मतलब इम्प्लांट करी तो भूल जाओ, आपको उसको निकालना भी होता है। सिमिलरली विद हार्मोन्स आल्सो। देन वेजाइनल बोलते हैं पेजरी, जो स्पेसिफिकली हम वेजाइनल में डालते हैं, ठीक है। तो meant to resolve slowly in the cavity, used to release steroids, antibacterial agents, antiseptics, astringents to treat vaginal infection। जब भी UTI हो जाता है या vaginal infections के लिए ये सारी चीजें जो होती हैं। ऑल्सो मैंने टैम्पून्स को या इन सबको इम्प्लांटेशन में क्यों रखा और वेजाइनल में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इम्प्लांटेशन मतलब कोई इम्प्लांट करना, उसका आपको उसको निकालना है। जो वेजाइनल पेजरीज यूजुअली क्या करते हैं, ये लोग एक टैबलेट फॉर्म में ही उन्हें इंसर्ट करते हैं, वहीं पे जाकर उसका रिलीज हो जाता है एंड खत्म, ठीक है। वेराज इम्प्लांट इज एक्चुअली यू आर यूजिंग समथिंग, मेडिकेशन के साथ जो भी आपका उसका रीजन है, एक्शन है, उसके साथ आप उसपे कुछ इंसर्ट कर रहे हो, उसको जब प्रोसेस हो जाए खत्म तो साथ उसको रिमूव कर दोगे। दैट इज व्हाट इम्प्लांटेशन मीन्स, ठीक है। सो आज के आई थिंक द टाइम इज अप, ठीक है। तो एक्सिपियंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में। मीनवाइल टैबलेट्स सब पढ़ना, जो डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी। बाकी 2 क्वेश्चन दिए ना मैंने, यस मैम, ठीक है। सेकंड वाज पीएच वाला एंड फर्स्ट वाज सस्टेन वर्सेस ये 50। अभी तो पता नहीं बच्चे भी भाग गए, 52 बच्चों में से जितने भी थे मैं किससे भी पूछ लूंगी, रिटर्न एक शीट में लिख लेना, फिर आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन, ठीक है, या फिर वर्ड में टाइप कर लेना जैसे आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. Any doubt, anyone? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay, No. so then we can conclude the class. Thank you for joining. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.